officers from the institutes under his guidance. And the efforts of the MGM, definitely Shri Ranjit Kakkar sir. So it is the brainchild of both of these personalities. And then the organization came into existence in June 2021. So last year, total 71 cadets were reported in the course 1 from October 2021, and now in this batch, we are again having more than 72 cadets. 72 cadets are there. Initially, 71 cadets were there in the course 1. All were the boys cadets. But as we are aware, in October 2021, the Honorable Supreme Court has given the decision, and the NDA, the field of NDA has been also opened for the girls, and very correctly we have taken, our management has taken the decision to start up it for the girls also. And I feel very happy to tell that in this batch 25 girls are joining. This is a big number in all over the country, I would like to say, because as it is said in the armed forces, as per the season you have to change your hat, and we have changed our hat. Now there are 25, more than 25 girls are on board for the course 2. So this is the basically success of this institute, the efforts taken by the management members, the entire support given by them. Here in this institute, from morning 5:45 hours, that is 5:45 to night 2300 hours, 11 o'clock PM, the schedule is very tight, and it is the perfect balance between the academics as well as the militarization. So that will overall groom the personality of the cadets here in this campus. So from the morning, you must have witnessed the beautiful campus. At the heart of the Aurangabad, nobody imagines that this kind of infrastructure is there. But this kind of infrastructure was made available by the management member of the MGM, and we are on the journey now. So basically, as an organizational structure here in this organization, our head of the institute is, president of the institute is Major Chandrasen Kurte sir, and director of MGM Shri Ranjit Kakkar sir. Then thereafter there is a team of the very qualified teachers. Our central head is there, Mr. Ghanshyam Singh sir, and retired army officers are there, army instructors are also there. So in this entire stay in the campus, the overall development of the cadets took place, and this institute basically is affiliated to the Maharashtra State Board for the HSC. So HSC and entire school activities are taken care by the MGM, and militarization is taken care by the MKDEI. So in this way, in this organization, now you are the part of the institute, and we are on a journey. So for this entire journey, I hope there will be proper support from the parents. And at this end, I would stop. And this is all about the organization. And definitely all the parents, new cadets, their family members will enjoy this journey which we are starting today. And in this entire journey, your motivation and support will be required, because whatever is there from the management side, they are there to provide it. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for describing our institution in a generous manner. After the description of our institute, now I would like to call upon our beloved President, Major Chandrasen Kulte sir, for addressing the welcoming of our new batch. Jai Hind to all. I said Jai Hind. Jai Hind, sir. Respected Ranjit Kakkar ji, the director of the MGM school and a best friend of mine, without whom this venture was not possible. Dr. Aparna Kakkar ma'am, a guiding force behind the MGM school and a mentor to many of them. Center head, parents, cadets, and dear staff.
on this particular occasion, I'd like to speak in maybe Marathi. I would have loved, but I hope everybody understands Marathi here. If anybody is not comfortable in Marathi, we can go for the Hindi. So I think, who doesn't understand the Marathi? Marathi, जिसको समझ में नहीं आती है वो हाथ ऊपर करें. तो है कुछ लोग हैं जिन्हें मराठी में दिक्कत है, तो एक राष्ट्रीय भाषा होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में हिंदी में वार्तालाप करूं. आज मैं इस उपलक्ष्य पे इस पर्टिकुलर दिन की शुरुआत जो हो रही है कोर्स नंबर 2 की, काफ़ी गर्व महसूस करता हूं, काफ़ी हर्ष महसूस करता हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में हमारे पास में देयर आर 5 गर्ल्स, जो पहले कोर्स में हमने डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड में लिया था, लेकिन अभी सेकंड कोर्स में अलग से ऑलमोस्ट 25 गर्ल्स आर देयर जो अभी सेकंड कोर्स में भी दाखिल हो रहे हैं. तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है. अभी डेटा रिलीज हुआ है, एनडीए के जो एग्ज़ाम देने वाले जो कैडेट्स थे, कैंडिडेट एस्पायरेंट्स थे, उनका डेटा. उसके अंदर में जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ, नॉट अप्रैल, लास्ट ईयर नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ, जो पहली बार गर्ल्स के लिए एनडीए ओपन हुआ था, उस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 4.5 से 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी. उसमें से ऑलमोस्ट 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख के आसपास लड़के थे और 1.5 लाख के आसपास लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया. उसमें से 2000 के आसपास गर्ल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए 1.5 लाख में से, और 3.5 लाख में से 6000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया सेकंड स्टेज के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए. उस इंटरव्यू में 19 लड़कियों को फाइनल सिलेक्शन हुआ और वो अभी 1 जुलाई में एनडीए में रिपोर्ट करेगी. मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको आसान ना समझें, लेकिन अगर सपना बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है, तो उसे देखना बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश बढ़ानी चाहिए, अपना एफर्ट्स और ज़्यादा लगाना चाहिए. और मैं आप सबका आदर करता हूं, आप सबका अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए कि आप सब ने मिलके एक अलग राह चुनी है, जरा हट के, जो कि सब समाज के पीर प्रेशर के, समाज के प्रेशर की वजह से सारा समाज एक ही नीट, जेईई, एमएससीईटी, अकेले कोटा के अंदर में 10 लाख बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं और एक ही मौका मिलता है. जेईई में या तो अच्छे मार्क लेके आओ, अगर नहीं आया तो कहीं XYZ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और अलग से बताने की जरूरत नहीं कि हालात क्या है सिविल इंजीनियर्स के, मैकेनिकल्स के. इसके जो अच्छे कर रहे हैं वो अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ट्रेंड होता है. पहले ये ट्रेंड था डीएड बीएड का, उसके बाद में इंजीनियरिंग का. अकेले महाराष्ट्र में 52,000 वैकेंसीज है इंजीनियरिंग की, और उसमें से 20,000 के आसपास वैकेंसी सरेंडर होती है अकेले महाराष्ट्र. फुलफिल नहीं हो सकती, भरी नहीं जाती. कुछ कॉलेज बंद हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि कब तक वो जो घिसा पीटा जो रास्ता है उसके ऊपर में काम करेंगे. तो मैं आपका आदर करता हूं, आपका अप्रिशिएट करता हूं इस चीज के लिए कि आपने एक अर्ली बर्ड्स के तौर पे आपने अपने बेटे को, अपने बेटी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चस्का लगाया है और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है. ये ऐसी एग्जाम यूपीएससी लेवल की पहली एग्जाम है नेशनल लेवल की जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है. ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपके बेटा और बेटी का एट द एज ऑफ 16.5 साल में यूपीएससी के लिए ट्राई करेगी. तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, हमारे फौज में बोलता है कि दिमाग में डालना है, दिमाग में डालना है, दिमाग में बिठाना है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है. जैसे मैंने बताया जेईई नीट के लिए एक मौका मिलेगा, यहाँ पे एनडीए के लिए 19.5 साल का होने तक आपको कम से कम 4 से 5 मौके मिलेंगे.
वो उसके बाद में आपको 10+2 टेक्निकल एंट्री जॉब, आपको ये जान के खुशी होगी कि देयर आर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्मी। एक पुणे में है, आप जो पुणे में होंगे तो आळंदी रोड पे देखा होगा CME, एक महू में है और तीसरा सिकंदराबाद में। नेवी का और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो इजीमाला केरला में है, हमें पता ही नहीं। कोरोना में सारे रिक्रूटमेंट बंद थे, लेकिन ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट चलती रही डिफेंस फोर्सेस की। एनडीए का एग्जाम अप्रैल 2020 में भी हुआ, नवंबर 20 में भी हुआ, और पिछले साल भी एग्जाम हुए, CDSC के भी हुए, एनडीए के भी हुए, क्योंकि फौज का रिक्रूटमेंट बंद नहीं हो सकता ऑफिसर्स का, तो उसमें मंदी नहीं आ सकती कि अभी मंदी है बॉर्डर खुली छोड़ दो अफसर बनना बंद कर दो, नहीं, वैसे हो नहीं सकता। बाकी बंद हो सकता, ये नहीं बंद हो सकता। तो आपके बेटे को बेटी को अर्ली एज में न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत लगेगा, न्यूज चैनल सुनने की आदत लगेगा, जनरल अवेयरनेस का उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, करंट अफेयर्स के बारे में वो सोचेगी। तो इस हालात में आपको ये पता चलेगा कि अब मेरा बेटा 5 एनडीए के अटेम्प्ट, टेक्निकल एंट्री के दो अटेम्प्ट्स, वो अगर नहीं होता है तो ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होती है, AFCAT होती है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होती है, INET होती है, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट होती है। साल में ये तीनों एग्जाम 2-2 बार होते हैं, मतलब 6 एग्जाम उम्र के 24वें साल तक दे सकते हैं। मतलब वो 17-18 अटेम्प्ट, ये एनडीए के 5-6 अटेम्प्ट, मतलब यू हैव 10 to 25 चांसेस टू हिट द बुल्स आई। मतलब आपका जो टारगेट है, जो आपने सपना देख रखा है कि आपके शोल्डर पे स्टार लगाने हैं, उसके लिए आपको 25 से 30 चांसेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करेंगे तो ये जरूर होगा। इंजीनियरिंग वालों को तो, और आपने सुना होगा कि एल्फिस्टन मुंबई का जो ब्रिज गिरा था उसको 48 घंटे में इंजीनियर्स ने बनाया था। तो फौज को इंजीनियर्स लगते हैं, बड़ी तादाद में लगते हैं। तो आपका बेटा बेटी एट द एज ऑफ 16.5 स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आपने उनको सपोर्ट किया, इसलिए आपका रिस्पेक्ट ये बरकरार रखिए। पाठीवर हात ठेवून फक्त लढ म्हणा, नक्कीच शी विल फाइंड समथिंग बेटर और ही विल फाइंड समथिंग बेटर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज के तारीख में अकेले पुणे के अंदर में 12 लाख के आसपास बच्चे एमपीएससी देने के लिए गए हुए हैं। ट्रेंड है देहात में कि बेटा क्या कर रहा है, एमपीएससी कर रहा है। एक शादी का कार्ड देखा था मैंने, उसके ऊपर में लिखा होता है ना कि क्लार्क दिस दैट। तो शादी के कार्ड में जो हस्बैंड, मतलब जो ग्रूम था, जो वर की साइड में लिखा था मिस्टर सैंटो एमपीएससी एस्पायरेंट। तो बहुत सारी जगह पे तो ट्रेंड है बारीक क्रू कट करने का, लाइट कलर शर्ट, व्हाइट कलर शर्ट, ब्लैक कलर पैंट, ब्लैक शूज पहन के गांव में आने का। व्हाट यू आर डूइंग? पुणे में एमपीएससी कर रहा हूं। और कब? जब इंजीनियरिंग की वो जो डिग्री हाथ में मिल जाती है, वो झोला पहन के अपना फोटो खींच लेता है, टोपा पहन के। उसके बाद में पता चलता है कि डिग्री का करना क्या है मैंने। पहले जमाने में तो भी पहले से दीवार पे 10वीं 12वीं और डिग्री का बीए का भी बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट दीवार पे लटकाते थे। अभी तो वो भी फैशन नहीं है, तो वो डिग्री उसी काम की भी नहीं है कि कहीं लटका दे। तो जब उसको पता चलता है कि अभी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो ग्रेजुएशन होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि अरे अभी मैंने कुछ तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहिए। वो आपका बेटा बेटी अभी से सोच रही है, कर रहे हैं, और आप भी सोच रहे हैं। इसीलिए आपका रिस्पेक्ट। कुछ हिदायतें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ब्रॉड बेस्ड। पहला, कोई भी गैजेट इनके साथ में छोड़िए मत। फोन अगर दे रखा है तो उसको बोलो ऑफिस में जमा कर दें, वरना अगर मिलेगा तो कुचला जाएगा और कैडेट खुद ही कुचल देगा। ठीक है, वो खुद ही फोड़ेगा, हमारे सामने फोड़ेगा। सो कोई गैजेट नहीं मिलेगा, कोई आईपैड नहीं, आईफोन नहीं, ये नहीं, नथिंग। नो स्मार्ट वॉचेस एज वेल। पहला। दूसरा, पहले 15 दिन तक बिल्कुल फोन का एक्सपेक्ट मत करिए। देयर विल बी नो फोन कॉल फॉर फर्स्ट 15 डेज। यहाँ से 15 दिन के बाद में कॉल आएगा, 3 मिनट का कॉल होगा आपने उसका सब सुन लेना है। अपनी सुरस कथा है उसको नहीं सुनाना कि तू गेल्यानंतर आम्ही मस्त फिरायला गेलो होतो। ओके, डोंट डू दैट।
उसकी सुन लीजिए, उसके पास बहुत कुछ होगा आपको बताने के लायक। और 3 मिनट इसलिए है क्योंकि क्वालिटी बात करेगा। झालं का जेवण विल नॉट बी देयर। ठीक है, कितना बताना है, क्या बताना है, ब्रीफ बोलते हैं फौज में उसको। और एक इवेंट होता है एसएसबी में, उसको बोलते हैं लेक्चरेट। तो 3 मिनट उसको तैयारी करने के लिए मिलता है, 3 मिनट उसको बात करने के लिए मिलता है। तो प्रिसाइसली जानता है कि मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ पे ग्रीटिंग शुरू करना है, कहाँ पे क्लोज करना है। 3 मिनट आप अगर आग बंद करके बैठेंगे तो आपको पता चला कितना लंबा समय होता है बात करने के लिए। उसके अलावा जब पहला कॉल जाएगा उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक होगा 21 डेज के बाद में, तब आप आके मिल सकते हैं, आउट पास मिलेगा। आप बेटे और बेटी को आपको बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, ले जा सकते हैं। सो एक वीनिंग ये प्रकार होता है जो मेडिकल टर्म में जो वीन होता है, मतलब माँ से छोटा बच्चा अलग जब होता है तो इस सेकंड स्टेज ऑफ वीनिंग है ये। और ये काफी प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, वो होगा। आप आउटपास के लिए आएंगे, पहली बार आएंगे, दूसरी बार आएंगे, फिर कैट खुद ही बताएगा आपको कि अभी मत आया करो माँ, एक ही तो संडे मिलता है उसमें भी आप पहुंच जाते हो, तो मुझे जाने दो, घूम के आने दो। तो वो खुद ही होके बाद में बताएगा कि प्लीज डोंट कम, आई एम हैप्पी हियर। एंड द मैनेजमेंट ऑफ एमकेडीआई, मैनेजमेंट ऑफ एमजीएम इज कैपेबल इनफ। एमजीएम इज नोन फॉर देयर सर्विसेज टू द सोसाइटी। उसका तरीके से उसका लुक आफ्टर किया जाएगा, उसको सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करेंगे, होलसम फूड दिया जाएगा, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज दी जाएगी, उसको एकेडमिक्स दिया जाएगा, उसको वर्सेटाइल बनाया जाएगा। ये इस तरीके का हाई लेवल का कंपटीशन अकेले नहीं लड़ा जा सकता। इसके 3 पिलर है, जैसे ट्राइपॉड होता है ना, जिसके ऊपर में हम मटका रख देते हैं, तिपाई बोलते हैं उसको। तो इस एनडीए का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तिपाई जिसके ऊपर में है, ये जिस तिपाई पे खड़ा है उसके 3 पैर, मतलब आप, हम और कैडेट्स, हम तीनों को एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा, एक दूसरे को मिलकर काम करना होगा, तभी जाके इस लेवल की कंपटीशन को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बोलेंगे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपका कंट्रीब्यूशन है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट ना ही करें तो बेहतर है। वो क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होगी नहीं, और आपको हर एक 15 दिन के बाद में आपको आपके बच्चे के प्रोग्रेस भेजी जाएगी नहीं, क्योंकि वो पेरेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जो काम करते हैं। यहाँ पे हमें स्टूडेंट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। आपको खुश करने का हमें कोई इरादा नहीं है और इच्छा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि विल ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज टू द बॉयज, क्योंकि आप यहाँ पे जो उसके क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसमें जो क्वालिटीज एम्बाइब हो रहे, कैरेक्टर बिल्डिंग जो हो रहा है, जो रैम रोड स्ट्रेटनेस उसके पर्सनॅलिटी में आएगा, मिलिटरायझेशन में आएगा। हम मराठीमध्ये म्हणतो की मिलिटरी खाक्या त्याच्या अंगात जो आणायचा असेल तर आपल्याला तो हेलिकॉप्टर पॅरेंटिंग काढून टाकावं लागते आणि त्याला स्वतःला रिस्पॉन्सिबल करावं लागेल. सो व्हेन ही विल कम होम यू विल रिअलाइज इट. When he will not ask you towel from his bathroom, then you will realize that the boy has changed. एवढं गॅरंटीने म्हणू शकतो की बघ तुझ्या वडिलांकडे ते कसे राहतात, असं तुम्ही आतापर्यंत तुमच्या मुलाला म्हणत आले असणार आहे. आता तुम्ही तुमच्या ह्यांना म्हणणार की बघा तो कसा आहे. तर एवढा फरक त्याच्यामध्ये नक्कीच येईल अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चीज के ऊपर में जरूर काम किया जाएगा. I guarantee you that we will look after your kids, your wards, and now there are cadets very well now in a comprehensive way of growth. Thank you very much and Jai Hind. Thank you, sir, for igniting the flame into the hearts of our junior.